Friends, welcome for this fourth session of this property law series, that is Indian Succession Act. Let me show you PPT first, and then I will show you the Bare Act also. So PPT first. Indian Succession Act. Yes. Now it is visible for you. 1925. It is very comprehensive act. It is very big act. Objective and scope. Consolidate law and intest and testamentary succession. Intestate and testamentary. Intestate means those who have not prepared the will, and testamentary succession means those who have prepared the will. मृत्यु पत्र तैयार किया है तो टेस्टिमेटरी सक्सेशन में आएगा, और मृत्यु पत्र तैयार करने के पहले ही अगर उसका डेथ हो जाता है तो दैट पर्टिकुलर केस इज कॉल्ड intestate succession. And this law is applicable to Christians, Parsis, Jews, Anglo-Indians. Does not apply to Muslims because their personal law is there for succession, and Hindus covered by Hindu Succession Act 1956. For this category, this Indian Succession Act is not applicable, but some part of Indian Succession Act is applicable to Hindus, Muslims also, like probate, like that part, which is a procedural part of the code. Types of succession. Testamentary succession with valid will. With valid will अगर है तो ये testamentary succession में आएगा. ये इंडियन सक्सेशन एक्ट के पार्ट 6 पे कवर हुआ है. We'll see that law later on. Intestate succession without will, that is covered in part 5. Part 5, without will, that is called intestate succession, and for part 6 is called testamentary, that is with valid will succession. Also covers probate. Probate means judicial order. जब कोर्ट में लेके जाओ, विल लेके जाओ, कोर्ट को बताओ, कोर्ट सब देखता है, सामने वाले जो विल में पार्टी उनको सबको इकट्ठा करेगा, समझ भेजेगा, सबका क्लियर होने के बाद जब कोर्ट ऑर्डर देता है कि दिस विल इज अ ट्रू करेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोबेट. फिर वो प्रोबेट को फिर एक बार कोर्ट, सिविल कोर्ट से प्रोबेट आ जाता है, प्रोबेट सर्टिफिकेट मिल जाता है. दैट टाइम nobody can challenge that probate certificate. So this is very perfect. Yeah. So letters of administration, then succession certificate, all are covered in Indian Succession Act. Structure of the Act. What is the structure of Act? Part 1 to 9. Part 1 to 10 covers domiciles, marriage, contiguity. Contiguity means a relationship between two people who share a common ancestor. एक ही माता पिता से आया है और उनके कनेक्शन, एक दूसरे से साथ जो कनेक्शन है, like brother sister, like that. Contiguity. That intestate testamentary succession. ये part 1 to 10 में cover हुआ. Includes provisions on probate. So what is the probate? The process of proving in a court of competent jurisdiction as a probate court that an instrument is the valid last will and testament of the deceased person. Deceased person की इच्छा के अनुसार ही will है. इसका सर्टिफिकेट जब कोर्ट कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन वाला कोर्ट दे देता है, that is called probate. Letter of administration and succession certificate is also part. Then important section, section 2 as usual,
definitions, very important section. Section 33, widow's share is given there. How widow will share. I will cover it later on. Section 57, 59 and 63 is related to wills and execution. Execution is very important in will. Then section 213, probate of will. How probate gets. So probate is covered in section 213. And section 372, succession certificate. It is covered. So once you get this succession certificate, what is the difference between a probate of will and succession certificate? प्रोबेट बोले तो विल जो है वो विल हम कोर्ट में लेके जाते हैं और कोर्ट को बोलते हैं कि भाई ये आप इसको बताओ कि ये विल सही है, करेक्ट। तो उसको सही करेक्ट जो सुनवाई करके बताता है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेट ऑफ। तो विल के ऊपर प्रोबेट होता है। लेकिन जब वारसदार यानी कि जो सक्सेसर्स हैं ये एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं और उनका कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, आदमी गया इंटरेस्टेड गया, उसने कोई ये नहीं किया, लेकिन उनका झगड़ा हो रहा है किसने लेना प्रॉपर्टी, क्या लेना, तो फिर वो कोर्ट में केस चलती है और फिर कोर्ट उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट देती है कि भाई ये वो सब कोर्ट देखती है एंड आफ्टर दैट गिव सर्टिफिकेट। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट फॉर एनी inheritance distribution dispute, succession certificate can be given by the court. But in case of will, whether that will is correct, true, correct, so that particular hearing that civil court will take, and then that probate court will give the certificate of probate. So this is different between. तो probate will के ऊपर होता है और बाकी किसी भी dispute के ऊपर, इनहेरिटेंस लॉ के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो डिस्प्यूट होता है उसके ऊपर सर्टिफिकेट सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है। टेस्टिमेंट्री सक्सेशन, विल अगर है तो टेस्टिमेंट्री सक्सेशन, हम ये हिंदू लॉ का नहीं देख रहे हैं, हम इंडियन सक्सेशन एक्ट देख रहे हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट हिंदू को मुस्लिम को एप्लीकेबल नहीं। ओके, तो ये हिंदू को हिंदू का सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल है, मुस्लिम को मुस्लिम का सक्सेशन एक्ट है, वो भी हम कवर करने वाले। तो अभी ये हम ये पारसी जू ये इनके लिए देख रहे हैं, क्रिश्चियंस हैं इनके लिए टेस्टिमेंट्री सक्सेशन। वैलिड विल, तो वैलिड विल कब होता है? व्हेन विल इज कॉल्ड वैलिड व्हेन इट इज रिटन, व्हेन इट इज साइन बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज गिविंग हिज विल, ओके, executor of that will. So written will should be written, it should be signed by executor, and it should be attested by 2 witnesses. 2 witnesses attested चाहिए मिनिमम। आप 3 करते 4 करते कोई इशू नहीं, लेकिन मिनिमम 2 witnesses चाहिए। If these 3 conditions are completed, then that is called valid. and अगर इसका रजिस्ट्रेशन है तो ज्यादा अच्छा है। विल का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, बट registration is preferable. This is my advice as a lawyer. Revocable during the lifetime. Lifetime कभी भी विल को हम रिवोक कर सकते हैं। जब हम नया विल करते हैं ना कोई, तब वो पुराना विल अपना आप ही रिवोक हो जाता है। सो लास्ट विल इज कॉल्ड लीगल विल। अभी सपोज मैंने 50 में एक विल करके रखा, 60 में एक विल करके रखा, 7 में एक, 70 में एक विल करके रखा, 80 में एक करके रखा, भगवान के दया से सपोज 90 का उम्र मिल गया तो 90 में एक किया, तो लास्ट विल माय इज कॉल्ड ट्रू विल। अपने आप ही पहले जो विल है वो अपने आप ही रिवोक हो जाता। मैरिजेस रिवोक्स विल अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। मैरिज रिवोक्स विल्स अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। मैरिज के कारण विल रिवोक हो जाता है अगर उसमें स्टेट पर्टिकुलर क्लॉज है तो, ऐसा unless specific statement. Specific statement should be there. Then intestate succession. अगर विदाउट विल अगर वो कोई क्रिश्चियन आदमी, ज्यू आदमी, पारसी आदमी चला गया विदाउट विल, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टेट सक्सेशन। तो इंटेस्टेट सक्सेशन फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस है कि उनके लिए फिर वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? सपोज ए विदाउट विल डेथ हुआ उसका, इंटेस्टेड सक्सेशन,
वो इशू को पैरा हो गया, सो दैट टाइम हिज प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू हिज विडो 1/3 शेयर। अगर बच्चे हैं तो फिर विडो को शेयर जाएगा, विडो को जाएगा 1/3 और चिल्ड्रन को जाएगा 2/3 शेयर। सो 3 पार्ट होगा उसके, तो 1 पार्ट विडो को मिलेगा और चिल्ड्रन को 2/3 मिलेगा। नो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नहीं है तो विडो गेट्स हाफ एंड रेस्ट ऑफ किंड्रेड। किंड्रेड बोले तो वंशावळ, दैट इज कॉल्ड सक्सेसर्स, ऑल सक्सेसर्स। बाकी सब सक्सेसर्स में ये किंड्रेड, ओ दैट इज कॉल्ड किंड्रेड, उनको बाकी मिले। जेंडर न्यूट्रल इनहेरिटेंस है, यहाँ पे जेंडर का न्यूट्रल्स है, यानी कि बॉय के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए ऐसा कोई कानून सेपरेट नहीं है, इसलिए ये जेंडर न्यूट्रल इनहेरिटेंस राइट्स इसमें है, ये इंडियन सक्सेशन एक्ट है। सक्सेशन सर्टिफिकेट कवर्स मूवेबल एसेट्स लाइक बैंक, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट में कवर होता है। हाँ, एक मिनट, शेयर हुआ है क्या देखता हूँ। यस, इट इज देयर। Succession certificate covers movable assets like bank, securities, etc. Issued by district judge. Succession certificate कौन देता है? District judge देता है. Don't apply for succession certificate to any lower than district judge. Valid proof for claim, not ownership title. क्लेम करने के लिए वैलिड प्रूफ है, सक्सेशन सर्टिफिकेट क्लेम करने के लिए वैलिड प्रूफ है, लेकिन ये ओनरशिप का टाइटल नहीं, ये क्लियर करो, लॉ पॉइंट है। प्रोबेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोबेट इज कॉल्ड लीगल वैलिडेशन ऑफ विल, व्हेन कोर्ट गिव द वैलिडेशन ऑफ विल, दैट इज कॉल्ड प्रोबेट। एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफ नो एग्जीक्यूटर नेम, विल में अगर मैंने एग्जीक्यूटर का नाम नहीं लिखा कि भाई मेरे विल का एग्जीक्यूशन किसने करना, तो फिर कोर्ट उसका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देगा, इफ नो एग्जीक्यूटर नेम। लेकिन मैंने विल में ही, किसी ने विल में ही अगर एग्जीक्यूटर का नाम लिख दिया कि भाई ये सो एंड सो एडवोकेट विल एग्जीक्यूट माय विल, या माय सो एंड सो माय फ्रेंड विल एग्जीक्यूट दिस विल, ओके, so that particular person will be a administrator of that particular execution of that will. Probate mandatory in certain regions. This is section 230. Probate mandatory in certain regions. तो ये प्रोबेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पार्ट जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, इट इज एप्लीकेबल टू हिंदू मुस्लिम्स आल्सो, because this is a procedure, code procedural part. Code procedural part is equal for all. But when there is a religious touch, that will be covered in religious law. I will show you that law when that particular matter turns up. These are Supreme Court case laws. So Clarence Pice versus Union of India. Clarence Pice versus Union of India, ये 2001 का केस है. Probate not needed outside notified area. Then ईश्वर देव वर्सेस कमता देव 1954 का है. प्रोपाउंडर मस्ट प्रूव विल. प्रोपाउंडर मस्ट प्रूव विल. प्रोपाउंडर ने विल प्रूव करना चाहिए. देन यमनम वर्सेस यमनम 2009, domicile matter for succession. So domicile matter for succession, your domicile should be Indian. That time Indian Succession Act एक क्रिश्चियन को एप्लीकेबल है ये, बट इंडियन क्रिश्चियन को एप्लीकेबल. दैट क्रिश्चियन शुड बी डोमिसिल ऑफ इंडिया. अगर वो डोमिसिल नहीं है इंडिया का तो फिर उसके एप्लीकेबल नहीं. अमेरिका के क्रिश्चियन को अगर वो इंडियन डोमिसिल नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं. इवन दो कुछ दिन के लिए वो आया है यहाँ पे और उसका डेथ हो गया भारत में, तो भी उसको एप्लीकेबल, उसको उसका देश का लॉ एप्लीकेबल.
बट डोमिसाइल मैटर्स फॉर सक्सेशन। कांता यादव वर्सेस ओम प्रकाश 2019 का है। रजिस्टर्ड विल नॉट कंक्लूसिव। तो रजिस्टर्ड विल कंक्लूसिव है ऐसा नहीं है, उसमें भी डिफॉल्ट हो सकते हैं, ऐसा ही है केस लॉ। देर आर सो मेनी केस। ये देख, कोई भी केस आता है ना, ए साइड से भी 4-5 केसेस निकलते हैं और बी साइड से भी 4-5 केसेस निकलते हैं। खाली वो केस का पर्टिकुलर फैक्ट ये वो पढ़ के करके इंटरप्रेट करना पड़ता है। फिर कोर्ट के सामने आर्गुमेंट करते समय हमको ये करना पड़ता है, पहले तो लीगल टर्म के ऊपर आर्ग्यू कर लो। लॉ, एवरीथिंग लॉ से अगर क्लियर हो जाता है ना, नो नीड टू गिव द साइटेशन। व्हेन लॉ क्लियर कट रिवील्स manifest everything clearly, then no need of case law. But when a law is ambiguous somewhere, that time you can use support your case laws. तो case laws का argument में support देते समय you should take care कि पहले हमारे केस लॉज कैसे एप्लीकेबल है ये बताओ, और अपोजिट पार्टी ने जो केस लॉज बताए वो कैसे इरिलेवेंट है ये केस के लिए ये भी बताओ, या वाइस वर्सा करो। पहले अपोजिट पार्टी के केस लॉज कैसे इरिलेवेंट है एंड हाउ माय केस लॉज आर रिलेवेंट टू दिस मैटर, ये दोनों दिया गया। लेकिन केस लॉज के ऊपर डायरेक्ट कभी भी प्रेशर नहीं देना आर्गुमेंट करते हैं, पहले लॉ के ऊपर प्रेशर। तो लॉ का प्रोसीजर, रूल्स, ये अगर क्लियर कट सब रिवल करते हैं तो फिर केस लॉस तैयार हो जाता है आपका, उस जजमेंट से नया केस लॉस तैयार हो जाता है। लेकिन केस लॉस के साथ में ही हमने आर्गू के लिए तैयार उठाना चाहिए, बट कोर्ट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन की फीचर्स ऑफ दिस Indian Succession Act: codified inheritance law for the Christian parties and Jews, testamentary and intestate succession rules defined, ensured clarity in inheritance and legal procedure. So this is the PPT. Now I will show you Baer Act. Where is Baer Act? Indian Succession Act. More than 300 sections are there. Daily one page I am regularly writing. So when I started this law, only next section wise, it takes more than 15 to 20 days. Indian Succession Act 2025. This is. Yes. See. See, part 1, preliminary. Preliminary covers section 3, 1 to 3. Then domicile. What is the domicile? Everything is given here. Part 2. Section domicile, sections 4 to 19. Part 3, marriage. 20 to 20. 20 to 22. Then part 4, consanguinity. Consanguinity बोले तो वंशावळ, यानी कि बेटा बेटी ये सब consanguinity है. Kindred, we can call it kindred. Consanguinity और kindred का सेक्शन है 23 to 28. इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन पार्ट 5 में आता है. सॉरी, इंटेस्टेट सक्सेशन, इंडियन सक्सेशन में इंटेस्टेट सक्सेशन पार्ट 5. इंटेस्टेट सक्सेशन मींस विदाउट विल, अगर वो उसका डेथ होता है तो दैट इज कॉल्ड विदाउट विल सक्सेशन. इसमें चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 में रूल्स इन केस ऑफ इंटेस्टेड अदर देन पार्सीज. पारसी के अतिरिक्त के लिए कुछ रूल अलग है. Distribution where there are linear descendants. Distribution where there are no linear distributions. Linear descendant है. Descendant बोले तो नीचे के वारस, linear, यानी कि माता पिता के नीचे बेटा बेटी ये है. अगर ये है तो चिल्ड्रन को कैसा दिया जाता है,
चिल्ड्रन नहीं है तो फिर ग्रैंड चिल्ड्रन को कैसे दिया जाता है, ऐसा ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को कैसा दिया जाता है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया है। देन स्पेशल रूल्स फॉर पारसीज इंटेस्टेंट, पारसी के लिए थोड़े अलग रूल्स हैं। टेस्टिमेंटरी सक्सेशन में, टेस्टिमेंटरी सक्सेशन जहाँ पे विल के साथ विल है तो दैट इज कॉल्ड टेस्टिमेंटरी सक्सेशन। इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में विल्स एंड कोडिसिल्स है। कोडिसिल्स मींस रेक्टिफिकेशन ऑफ विल। कोई विल में हम ऐड करते थे, कोई विल प्रिपेयर करने के बाद कोई एक और चीज ऐड करते हैं उसमें, दैट इज कॉल्ड कोडिसिल, दैट इज कॉल्ड additional will or additional part of that particular will, an add-on. Then it is section 59 to 62. Then chapter 3 of execution of unprivileged wills. These two. Then chapter 4 of privileged wills. Then attestation, revocation, alteration, revival of wills. Then chapter 6 is related to construction of wills. Construction of will. How will prepare construction of will. So construction of will जब बनाएंगे किसी का ना, पारसी अब क्रिश्चियन आदमी का, तो 74 से लेके 111 तक के सेक्शन पढ़ लेना प्रॉपरली। देन टू ऑफ वाइड बिक्वेट। बिक्वेट मीन्स, बिक्वेट का मतलब होता है टू गिव प्रॉपर्टी टू आवर लीगल हेयर, दैट इज कॉल्ड गिविंग द प्रॉपर्टी टू लीगल हेयर, दैट इज कॉल्ड बिक्वेट, वाइड बिक्वेट। Bequet means given property in inheritance. So vesting of legacies, onerous bequest, continuous bequest, conditional bequest. Bequest means giving gift or giving, not gift, giving property in inheritance. Then bequests and direction as applicable and irrelevant. Then there is chapter 13 of bequet to an executor. एंड एग्जीक्यूटर को बिक्वेट अगर देता है ना, एग्जीक्यूटर को अगर कुछ बिक्वेट देता है तो दैट इज ए संशय में आ जाता है होगा, सो दैट एग्जीक्यूटर इज डूइंग सम फ्रॉड लाइक दैट। सो एग्जीक्यूटर को कभी बिक्वेट देना नहीं चाहिए बिल में, अदरवाइज लफड़ा होता है। स्पेसिफिक लीगेसीज, देन डेमोन्स्ट्रेटिव लीगेसीज, देन एडम्पशन लीगेसीज। बहुत वास्ट है ये। इंडियन सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम सक्सेशन एक्ट इतना इजी नहीं है इंडियन सक्सेशन में, क्योंकि इसका काफी पार्ट हम हिंदू मुस्लिम को भी एप्लीकेबल है। खाली इनहेरिटेंस का जो प्रॉपर्टी, टेस्टिमेंटरी सक्सेशन एंड टेस्टिमेंटरी सक्सेशन, इनटेस्टेड सक्सेशन, ये दो जो पार्ट है, इंटेस्टेड सक्सेशन एंड टेस्टिमेंटरी सक्सेशन, वो हिंदू मुस्लिम के लिए अलग है और क्रिश्चियन के लिए ये है। लेकिन बाकी जो कोर्ट प्रोसीजरल पार्ट है, प्रोबेट है, सर्टिफिकेट है, सक्सेशन सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ हमारे इंडियन सक्सेशन एक्ट के अनुसार ही चलता है, फॉर मुस्लिम एंड फॉर हिंदू ऑल्सो। ऑलरेडी दिया वो लॉ में, वैसा दिया। Legacies to creditors and portions, then of election, then gift, contemplation of death, then protection of property of deceased, part 6, protection of property of deceased, then representative title to property of deceased on succession, पार्ट 9 है प्रोबेट लेटर एंड, जब प्रोबेट विबेट करना है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल करना है कोर्ट में, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट डिसीज, ये सब के लिए ये पार्ट याद रखना, 9 नंबर पार्ट जो 2 से 17 से शुरू होता है। फिर उसमें ये 2 से 17 से फिर चैप्टर अलग अलग। ये लास्ट पार्ट है इसका। और ये पार्ट 10 है सक्सेशन सर्टिफिकेट। पार्ट 11 है मिससेलेनियस, इसमें शेड्यूल्स भी दिया है। शेड्यूल्स में पूरा सब कुछ फॉर्मेट दिया है। टेबल ऑफ कॉन्सिबिलिटी, यानी कि वारसा का टेबल क्या है, यानी कि किसको कैसा मिलना चाहिए पैसा, वो मैं बताऊंगा आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
क्रिश्चियन आदमी मरने के बाद उसका पैसा किसको किसको मिलेगा, तो वो टेबल ऑफ कॉन्सिक्विटी दिया, कॉन्सिक्विटी, दैट इज कॉल्ड किंड्रेड। और शेड्यूल 2 में क्या है, पार्ट 1 में ऑर्डर टू नेक्स्ट टू किंड्रेड इन केस ऑफ द पार्सीज इंटरेस्टेड, एंड पार्ट 2 में ऑर्डर of the next of kindred in case of the party interested, referred in the section 55, 54 का 55 का। शेड्यूल 3 में क्या दिया है, प्रोविजंस ऑफ पार्ट 6 एप्लीकेबल टू सर्टन विल्स एंड कोडिसिल्स। पार्ट 4 में फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट दिया है, ये जज के लिए, जज जब सर्टिफिकेट देगा तब ये फॉर्म क्या है, जज को भी दिमाग नहीं चलाना है, लॉ में दिया है वैसे ही सर्टिफिकेट तैयार करके देना। देन शेड्यूल 5 है फॉर्म ऑफ कैवेट, कैवेट भी फाइल कर सकता है। तो कैवेट तो मालूम है आपको, रेगुलर जब कोई केस जीतता है और हारने वाला आगे के कोर्ट में जा सकता है ऐसा लगता है, तो जीतने वाला अगले कोर्ट में कैवेट फाइल कर सकता है, तो उसको वो फिर एंट्री करते समय उसको रोक सकता है। फॉर्म ऑफ प्रोबेट, प्रोबेट का फॉर्म यहाँ दिया है, ये सब लॉ में आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे सब मिलेंगे आपको, मैं ये बताने वाला हूँ आपको टेबल कॉन्सिक्वेंट का। फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट एंड एक्सटेंडेड सर्टिफिकेट, सब कुछ दिया है। अरे लॉ बहुत इजी है, अगर हम पढ़ते नहीं, प्रॉब्लम ये है हमारा क्या है, हम पढ़ते नहीं, हम लॉ करते समय भी बेयर रखने पड़ते हैं, हम वो किताब भी नहीं पढ़ते हैं, वो जो क्या बोलते हैं ना, वो शॉर्ट किताबें आती है वो पढ़ के लॉ क्लियर होते हैं, प्रैक्टिस में भी पूरा लॉ कभी नहीं पढ़ते हैं, जैसा जैसे केस आएगा वैसे ही। तो फिर कैसे अच्छे लॉयर बनेंगे बताओ। हाँ, लॉयर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी पढ़ना, उसको आना चाहिए, पढ़ना आना बहुत जरूरी है। ये देखो ये शेड्यूल अभी आया, शेड्यूल पे लिया, सर्टिफिकेट ऑफ एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट, फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्म ऑफ प्रोबेट, प्रोबेट का फॉर्म क्या है, आई जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट सो एंड सो, ये जज ने देना है। कैवेट, कैवेट तो आप फाइल करते हैं, हमको वो टेबल देखना। हाँ ये टेबल, टेबल ऑफ कॉन्सिक्वेंट, ग्रेट ग्रैंडफादर्स फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर्स फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर बोले तो हमारे पापा के पापा, उसके पापा और उसके पापा, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट अंकल, ये 4 पे आता है, 3 5 पे आता है, ये 3 पे आता है, ग्रैंडफादर ग्रेट अंकल, ये फिर ये फादर आए, ये 2, अंकल 3, ये अ पर्सन हुज रिलेटिव्स आर टू बी रिकॉर्ड। अब ये जो पर्सन है ये इसके रिलेटेड है, तो फिर इसके सन, ग्रैंडसन 1 पे सन है, ग्रैंडसन 2 पे है, ग्रेट ग्रैंडसन 3 पे, जिसका विल है या जिसका डेथ हुआ है और जिसका प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करा वो यहाँ पे है, तो इसके सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन, और इसके ये ब्रदर्स, नेफ्यू, ये ऐसा ऐसा है, वसीम, ये ऊपर के है, ये इन यहाँ तक आएगा इसका। ये फादर को जब जाता है, फादर, फादर से ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर से ग्रेट ग्रैंड फादर, ऐसा ऊपर तक है, ऐसा। ये थोड़ा इंडियन सक्सेशन एक्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हिंदू सक्सेशन एक्ट में नहीं, बहुत ईजी है, मुस्लिम सक्सेशन एक्ट में भी ईजी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये थोड़ा सा 2 4 बार पढ़ेंगे ना तो अपना क्लियर होगा, आपको होमवर्क के लिए है ना, होमवर्क ये हफ्ते हम आपको करना है कंप्लीट का, नहीं तो कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, आप कोर्स कर रहे हैं मेरे पास लेकिन आई विल नॉट गिव द सर्टिफिकेट, आपको मुझे एफिडेविट फाइल ये करना है कोर्ट में, कोर्ट में या रजिस्ट्री के क्या बोलते हैं, नोटराइज, नोटराइज एफिडेविट करके भेजना है कि आई हैव लर्न सो एंड सो टॉपिक फ्रॉम यू एंड आई हैव रीड दिस, ये कौन से डे को आपने वो पढ़ा है, वो डेट वगैरह वो करना है कंप्लीट। ओके, और वैसा एफिडेविट आप मुझे भेजेंगे ना, दैट टाइम आई विल send you the certificate of this course, otherwise not। चलो दोस्तों, now we'll stop this and we'll move for next
प्रेजेंटेशन। थैंक यू।